अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का पास पेपर। हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन 4 पे हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अबाउट CAPM एंड पोर्टफोलियो थ्योरी। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, फिर हम इसे मिलकर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओकान लिमिटेड OL is a manufacturing company based in Lahore and is listed on the Pakistan Stock Exchange. OL produces pre-prepared ready meals that are sold to retailers. The product range is limited and OL is keen to develop and expand the range of ready meals sold under the OL brand. The board has been approached by a rival company, KOEL Limited, KOEL, to ascertain if OL would be interested in acquiring the business. आपका एक rival है, उसने खुद आपको अप्रोच किया है कि are you interested in acquiring us? KOEL's owners are looking to retire and would like to sell the company as a going concern. Prior to being approached by KOEL, the board had commenced negotiations with a local farming company, Roller Limited, with a view to making an offer to purchase the business to integrate with a key part of the supply chain. OL does not have sufficient funds at the current time to invest in both KOEL and Roller and must choose just one business. KOEL से पहले आप एक कंपनी रोलर को इवेल्युएट कर रहे थे, उनसे नेगोशिएशंस आपकी शुरू हो गई हैं इन ऑर्डर टू परचेज देम, एंड ये एक फार्मिंग कंपनी है, अपनी सप्लाई चेन से उसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। OL कीन किस में है? वो कीन है कि वो अपने बिजनेस को डेवलप करे, रेंज ऑफ रेडी मील्स बनाए अंडर द ब्रांड OL. OL does not have sufficient funds at the current time to invest in both KOEL and Roller and must choose just one business. तो दो में से किसी एक की आप एक्विजिशन करेंगे, किसी एक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे. The investment is likely to be similar in financial terms at around rupees 500 million. तो किसी भी एक में अराउंड 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी. Neither KOEL nor Roller have any debt finance. इनमें कोई debt finance नहीं है. The board is aware that there are financial models that evaluate the risk and return of combined businesses, portfolio theory and CAPM. यानी एक तो आप ओकान खुद है ना, OL, ओकान या KOEL अक्वायर करेगा तो ओकान प्लस KOEL बन जाएंगे आप, या आप ओकान के साथ रोलर अक्वायर करेंगे तो you'll become ओकान प्लस रोलर. The board is aware that there are financial models that evaluate the risk and return of combined businesses, portfolio theory and CAPM. However, the board is not sure which model should be used in respect of this decision and has asked for your advice. You have been able to collate the following information for OL and the other two companies. अब आपके पास क्या डेटा मौजूद है? Expected return for shareholders. Shareholders का expected return. ओकान का अपना है 14, KOEL का 13 एंड रोलर का 15%. स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3, 2.54. कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद ओकान, KOEL की है 0.9, बिल्कुल ज़्यादा कोरिलेटेड है पॉजिटिवली. क्यों? क्योंकि वो आपका राइवल है और सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, जैसे कि ऊपर बताया गया. इज़ अ राइवल कंपनी, सो नेचुरली उसके रिस्क एंड रिटर्न्स आपके साथ बिल्कुल अलाइंड है. सो कोरिलेशन जो है उसकी 0.9 है. रोलर की कोरिलेशन आपके साथ है 0.3. इक्विटी बीटा आपका 0.78 है, रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क. KOEL का 0.67 है और रोलर का 0.89 है. अच्छा, रोलर और KOEL नेचुरली दोनों क्या हैं? ये दोनों जो कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनीज ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनीज हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी 2000 मिलियन है, KOEL की 500 मिलियन और रोलर की भी 500 मिलियन. तो अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद 2000 आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, प्लस आप इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, KOEL की होगी या नेचुरली फिर रोलर की होगी. OL would like to fund the acquisition by issuing some additional irredeemable debt finance. The existing debt of OL carries a coupon rate of 6% per annum and is trading at 75%. ठीक है जी. The new debt finance will have a coupon rate of 7% per annum. The debt is secured in a similar way to the existing debt such that investors will expect the same return. So जो overall KD है, जो आपकी existing debt की होगी, वही KD आपकी नई debt की भी होगी. कूपन रेट उसका 6% है, यहाँ 7 होगा, लेकिन जो KD होगी, जो मार्केट रेट है, वो जो एग्जिस्टिंग पे रन हो रहा है एग्जिस्टिंग का जो है, वही एग्जैक्टली आपकी न्यू डेट का भी मार्केट रेट होगा या KD प्री टैक्स होगी, ये कहा जा रहा है.
The return on Pakistan Stock Exchange can be assumed to be 16% and risk-free treasury bonds have a coupon rate of 7% per annum. The applicable rate यानी RM is 16% and RF is 7%. Applicable rate of tax is 29%, tax rate is 29. Required use both portfolio analysis and CAPM to determine the overall business risk and return of the enlarged business. Assuming OL acquires just one of the target companies. अगर आप दो में से कोई एक ही acquire करें naturally, यानी या ओकान प्लस कोयल होगा या ओकान प्लस रोलर होगी जो enlarged company होगी. Consider each acquisition separately. एडवाइज द बोर्ड, ये पहला पार्ट है जिसमें हम एनालाइज करेंगे ओवरऑल बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न यानी पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू भी और CAPM का भी हम देखेंगे कंबाइंड बिजनेस का रिस्क यानी पोर्टफोलियो बीटा. वहाँ हम पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू करते हैं, CAPM में हम बीटा कैलकुलेट करेंगे और फिर रिटर्न देखेंगे दोनों का कि दोनों मॉडल्स के थ्रू हम इनको एनालाइज करेंगे. फिर सेकंड पार्ट में एडवाइज द बोर्ड ऑफ OL विच मॉडल इज मोर सुटेबल टू इट्स सर्कमस्टांसेस, इसके अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या सूटेबल मॉडल है. एंड देन रिकमेंड विच इन्वेस्टमेंट द कंपनी शुड मेक, फिर कंपनी को कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये हम देखेंगे. अच्छा जी, फिर उसके बाद इग्नोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू डेट फॉर रिक्वायरमेंट्स A एंड B के लिए आप न्यू डेट की रिक्वायरमेंट्स को भी इग्नोर कर दें. C में फिर आ गया कि एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड द लाइकली इशू प्राइस. ये पार्ट C है. पहले हम पार्ट A और B पे फोकस करते हैं और हम कैलकुलेशंस अपनी करते हैं पार्ट A और B की जिसमें हम पोर्टफोलियो थ्योरी और साथ ही CAPM के थ्रू वर्किंग देखेंगे. अच्छा जी, तो अब आइए पहले हम पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू चलते हैं. पार्ट A, अब देखें हमारे पास दो ऑप्शन है. जो ऑप्शन 1 है वो है OL प्लस कोयल और ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास, वो है OL प्लस रोलर. दोनों ही सूरतों में जो OL की इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 2000 मिलियन और या कोयल होगी या रोलर होगा. इन दोनों कंपनीज में से कोई एक कंपनी होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन होगी, तो टोटल बन गया 2500. सो इन टर्म्स ऑफ वेटेज क्या होगा, 2000 divided by 2500, this is 80% and 20%. तो यूं कहिए XA और XB हमें मिल गए, राइट. अच्छा जी, तो अब आइए हम पहले ऑप्शन 1 पे आते हैं. ऑप्शन 1, राइट, विच इज OL प्लस कोयल. हम पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या करेंगे, हम पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. पोर्टफोलियो रिटर्न RP क्या होगा, OL का जो रिस्क है, OL का जो रिटर्न है वो है 14% और कोयल का है 13%. तो हम कहेंगे 14% इंटू 0.8 प्लस 13% इंटू 0.2. तो ये आ गया हमारे पास पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट. कैलकुलेट करें क्या आता है, 13.8. बेटा मार्कर्स ले आइए, एक दो ब्लैक और एक ब्लू. 13.8%. अच्छा जी, उसके बाद पोर्टफोलियो रिस्क. पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला याद है हमें, सिग्मा A स्क्वायर XA स्क्वायर सिग्मा B स्क्वायर XB स्क्वायर प्लस 2 कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट AB सिग्मा A XA सिग्मा B XB, राइट. तो हम इसमें फिगर्स डाल दें, हमारे पास सारी फिगर्स मौजूद है. A हम कह रहे हैं OL को, B हम कह रहे हैं कोयल को. तो हमारे पास 3%, 0.8 इसकी 80% वेटेज, देन वी हैव 2.5% एंड देन इट इज 0.2 स्क्वायर प्लस 2 कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट इज 0.9, 3
0.8, 2.5, 0.2। तो फाइंड आउट करें हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क की क्या फिगर आ गई, कैलकुलेट करें। तो ये फिगर बन गई हमारे पास 2.858 यानी 2.86 कर दें। तो ऑप्शन 1 के केस में ये पोर्टफोलियो रिस्क और ये पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू जब भी हम दो पोर्टफोलियोज के एनालाइज करेंगे तो दोनों के कंपैरेटिव रिस्क एंड रिटर्न्स को देखेंगे और उसकी बेसिस पे फैसला करेंगे। ऑप्शन 2 पे आ जाएं आप। ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास? ऑप्शन 2 इज कोयल OL प्लस रोलर 80%, 20% सेम, राइट। अच्छा, अब इसमें पोर्टफोलियो रिटर्न क्या आएगा? रोलर का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%, तो 14% इंटू 0.8 प्लस 15% इंटू 0.2 करें तो ये 15 है, ये बन जाएगा 14.2%, राइट। सब देखें, सबके पास ये फिगर आ रही है। फिर ऐसे ही हम पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला। देन 3 स्क्वायर 0.8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पॉइंट, अब रोलर की स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, 0.2 स्क्वायर प्लस 2 कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट 0.3, 3, 0.8, 4, 0.2। तो देखिए हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क की क्या फिगर आ गई। ये आ गई 2.748 यानी 2.75%। तो अगर हम पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से देखें, इस ऑप्शन 2 में इज लोअर रिस्क, कंपैरेटिवली लोअर रिस्क अकम्पनीड बाय कंपैरेटिवली हायर रिटर्न, राइट। तो पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलेंगे, पोर्टफोलियो थ्योरी पे कह रही है कि ऑप्शन 2 इज़ बेटर, कि वेयर कंपैरेटिव बेसिस पे रिस्क रिटर्न पे अगर आप देखें यहाँ हायर रिस्क हैं एंड लोअर रिटर्न्स, और यहाँ पे लोअर रिस्क है और कंपैरेटिवली हायर रिटर्न है। तो इफ वी वर टू डिसाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी, so we would say you go ahead with option number 2, you go ahead with acquisition of roller, जिसमें आपका ओवरऑल रिस्क भी कम होगा और कंपैरेटिव रिटर्न भी ज़्यादा है। और उसकी वजह ये है कि वो आपके साथ, यानी दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ वर्टिकल इंटीग्रेशन, और ये जो है दिस इज़ मोर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो आप सेम राइवल को अक्वायर कर रहे हैं तो नेचुरली यू आर पुटिंग योर एग्स इन वन बास्केट। दिस इज़ अ मोर रिलेटिवली डाइवर्सिफिकेशन वाला जो काम है, जिसमें रिस्क कम हो रहा है और रिटर्न आपका बढ़ रहा है। वैसे फ्रॉम अ सिस्टमैटिक रिस्क पर्सपेक्टिव से देखें, इक्विटी बीटा जो है 0.67 है कोयल का, इसका 0.89 है। इसका इक्विटी और एसेट बीटा दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि दोनों कंपनीज कोयल एंड जो रोलर हैं उनमें कोई डेट फाइनेंस नहीं है। तो वैसे बिजनेस रिस्क रोलर के ज़्यादा हैं, बट द फैक्ट कि कंबाइन होके द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लोअर, तो पोर्टफोलियो रिस्क आपका कम हो जाता है यहाँ। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जो है ना कंपैरेटिव जो डाइवर्सिफिकेशन की ब्यूटी है, जहाँ रिटर्न्स आपस में कम कोरिलेटेड होते हैं या देयर इज लेस कोरिलेशन। तो ऐसी सिचुएशन में आपका रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है कि बिल्कुल एक 100% डाइवर्सिफिकेशन तो शायद नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन है, एग्जैक्टली सेम बिजनेस नहीं है, राइवल नहीं है। तो आपकी इंडस्ट्री तो शायद सेम है लेकिन रिलेटिवली कोरिलेशन कम है, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेशन एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वेयर यू हैव अ वेरी हाई कोरिलेशन। ठीक है ना। तो कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कह सकते, डाइवर्सिफिकेशन तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री में चले जाएं, लेकिन कह सकते हैं कि आप ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क, बिकॉज द कोरिलेशन इज लो इन दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन, सो यू गेट लोअर रिस्क ऑन अ पोर्टफोलियो बेसिस एंड कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स। ठीक हो गया जी। तो अब आइए अब हम आते हैं CAPM पे। यहाँ तक हम पहुँच जाएं तो फिर हम CAPM में भी ऐसे ही करते हैं कि हम पोर्टफोलियो CAPM रिटर्न निकालते हैं, पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं, एंड वी फिगर आउट कि जी वेयर आर वी, और फिर अल्फ़ा वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे, उससे भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो मौजूद हैं हमारे पास, और हम CAPM बेस्ड पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकालेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा वैल्यू परस्पेक्टिव से वेयर डू वी स्टैंड।
तो CAPM से हम इन दोनों एक्विजिशंस को एनालाइज करते हैं, फिर हम वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट और हम पार्ट बी को अटेम्प्ट कर सकेंगे. The difference between the two models is कि portfolio theory is suitable when you are not very well diversified. CAPM assumes that you are very well diversified और वो कहता है you should only be concerned with systematic risk. The unsystematic risk जो कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ख़त्म हो सकता है, उसके अगेंस्ट वो आपको प्रीमियम नहीं ऑफर करता मॉडल. एनीवे हम पहले ये CAPM की कैलकुलेशंस कर लें एंड देन we'll come back to the discussion part B. यहाँ तक आप लोग सब पहुँच जाएं. अच्छा सॉरी, पार्ट ए ही कर रहे हैं हम, इसमें CAPM. तो अगेन अगर हम CAPM बेसिस पे चलें, ऑप्शन 1 को पहले ले लेते हैं, विच इज़ OL प्लस कोयल. हम इसे लेके चलें तो हम बीटा फाइंड आउट कर देते हैं, पोर्टफोलियो बीटा अगर हम देखें तो दिस विल बी 0.78 इंटू 0.8 प्लस 0.67 इंटू 0.2. क्या फिगर बन गई? .758, राइट. फिर हम निकालते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न. RP इज RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा P, राइट. देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे तो कोयल इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखें और उसका बीटा इक्विटी भी देखें, जो कि ऑल्सो इसका बीटा एसेट है, तो कोयल इज़ कंपैरेटिवली लेस रिस्की एज़ कम्पेयर टू रोलर. ठीक है ना. इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, रोलर की 4 है. ठीक है. कोयल 0.67, 0.89. पोर्टफोलियो थ्योरी ने हमें ये बताया कि ओकान के साथ मिलके, अल्दो इंडिविजुअली रोलर इज़ मोर रिस्की, लेकिन ओकान के साथ मिलके बिकॉज द कोरिलेशन इज़ लेस, सो योर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क इज़ डिमिनिश्ड. अच्छा, अब आइए यहाँ पे CAPM में देखते हैं. CAPM में हमारे पास ओवरऑल हमारा जो है वो रिस्क क्या बन गया, 0.758, और इसकी फॉर्मूले की बेसिस पे अब हम CAPM रिटर्न निकालें तो CAPM रिटर्न वुड बी RF इज 7, 16 माइनस 7 इंटू 0.758. तो देखें क्या फिगर बनती है, 9 इंटू 0.758 plus 7, this becomes 13.82. 13.82. This is CAPM return versus जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न था, क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मेरा ख्याल है 13.8 था. सो अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 0, थोड़ी सी माइनस है. CAPM मॉडल कहता है कि आपको बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स द पोर्टफोलियो शुड ऑफर 13.82, और वैसे हमने देखा तो इट इज ऑफरिंग 13 ऑफर 13.82 और वैसे ऑफर कर रहा है 13.8, तो माइनस 0.02, so that's okay. So alpha is approximately 0. So this is expected to offer you exactly the same return which is the जो कि मॉडल कह रहा है. तो उस पर्सपेक्टिव से तो इट इज ओके. ऑप्शन 2 को देखते हैं. ऑप्शन 2 इज OL प्लस रोलर. इसमें हम देखें पोर्टफोलियो बीटा, यहाँ पोर्टफोलियो बीटा क्या आएगा, इज 0.78 इंटू 0.8 प्लस 0.89 इंटू 0.2. तो पोर्टफोलियो बीटा क्या है हमारा, .802, slightly higher because roller is comparatively a riskier investment. Portfolio return निकालें, again 7 plus 16 minus 7 into 0.802. तो देखें क्या रिटर्न आ गया हमारा इसके हिसाब से, into 9 plus 7 is 14.22, right? This is CAPM return. और वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या निकाला था, वो भी तकरीबन इतना ही है,
14.2 ही था, तो अल्फा वैल्यू अगेन अप्रॉक्सीमेटली 0 है ना। तो फ्रॉम एन अल्फा परस्पेक्टिव तो मॉडल कह रहा है कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दे आर ऑफरिंग अ रिटर्न एग्जैक्टली एज पर व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, उससे थोड़ा सा ही स्लाइटली कम है, 0.02 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो दे आर ऑफरिंग अ रिटर्न एज पर योर जो है ना रिक्वायरमेंट। अब आता है सवाल, तो सी ए पी एम परस्पेक्टिव से आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सी ए पी एम मॉडल ये कह रहा है जिसका रिस्क ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिटर्न ऑफर करना चाहिए, वो ये रिटर्न दे रहा है, जिसका रिस्क कम है उसे कम रिटर्न ऑफर करना चाहिए और इतना ही रिटर्न ये पोर्टफोलियो दे रहा है। ठीक है जी। तो सी ए पी एम परस्पेक्टिव से तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क की कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट में करें, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हायर रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क अकम्पनीड बाय हायर रिटर्न, लोअर रिस्क अकम्पनीड बाय लोअर रिटर्न। पोर्टफोलियो थ्योरी तो ये कह रही थी कि ऑप्शन 1 से कंपैरेटिव में ऑप्शन 2 इज बेटर, ठीक है ना, इज मोर एफिशिएंट। ऑप्शन 2 इज एफिशिएंट और ऑप्शन 1 वाज इनएफिशिएंट। सीएपीएम के पर्सपेक्टिव से दोनों क्या हैं, दोनों ओके हैं। जितना रिटर्न रिस्क की बेसिस पे मिलना चाहिए उतना ही रेस्पेक्टिव पोर्टफोलियो ऑफर कर रहा है। इतनी बात हमने लिख दी यहाँ, ठीक है ना, नोट कर ली। अब आइए, एडवाइज द बोर्ड ऑफ ओएल विच मॉडल इज मोर सुटेबल टू इट्स सर्कमस्टेंसेज एंड देन रिकमेंड विच इन्वेस्टमेंट द कंपनी शुड मेक। अब यहाँ ये आप बात लिखेंगे और हम लिख सकते हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी वर्सेस सीएपीएम। पोर्टफोलियो इज रेलेवेंट फॉर दोज इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों रिस्क आते हैं। सीएपीएम जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये अज्यूम करता है इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क एंड उसी की बेसिस पे उनको प्रीमियम चाहिए, उसी की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो अब अगर ओकान के जो इन्वेस्टर्स हैं और ओकान जो है अगर इसके इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स वेल डाइवर्सिफाइड हैं तो फिर तो उन्हें सीएपीएम की बेसिस पे डिसीजन करना चाहिए और सीएपीएम की बेसिस पे वो ये देख लें दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स हायर रिस्क अकम्पनीड बाय हायर रिटर्न्स, लोअर रिस्क अकम्पनीड बाय लोअर रिटर्न। और अगर ओकान के जो है इन्वेस्टर्स वेल डाइवर्सिफाइड नहीं हैं तो फिर उन्हें पोर्टफोलियो थ्योरी की बेसिस पे चलना चाहिए। और पोर्टफोलियो थ्योरी तो जो है कैटेगोरिकली कह रही है कि ऑप्शन नंबर 2 इज एफिशिएंट and option 1 is comparatively inefficient, तो they should go, Okan should go with investment in roller। अब हम ये बात भी यहाँ लिखेंगे कि इन मॉडल्स के अलावा, मॉडल्स तो ये कह रहे हैं और किस मॉडल को फॉलो करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो कितने डाइवर्सिफाइड हैं या नहीं है। लेकिन साथ में यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट करना है, वो ये कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पार्किंग अ 50 मिलियन और 100 मिलियन और 200 मिलियन सरप्लस फंड एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए। इट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एक्विजिशन ऑफ एन एंटिटी, राइट। तो एक्विजिशन डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होता, एक्विजिशन में आप अपनी स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं उनको जहन में रखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू आर ट्राइंग टू डू। इफ यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, इफ दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी कंपैरेटिवली, देन यू शुड गो अहेड विद कोएल कि जी इसके थ्रू हमें जो है ना वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, हमें मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, हमारी मार्केट पावर, मोनोपोली, प्राइसिंग की जो डिक्टेशन है वो हम कर सकेंगे एंड प्रॉब्ली विल बी कंपैरेटिवली बिगर, हमें सिनर्जी ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर ये है तो फिर आप कोएल की तरफ जाएं। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर सप्लाई चेन एंड यू वांट टू इंश्योर दैट योर सप्लाई चेन इज़ गारंटीड, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से ज़्यादा सिनर्जीज हैं, देन यू शुड गो अहेड विद रोलर। ये बात भी आप लिखेंगे। तो हम कोई एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं देंगे, हम सारी बातें ये लिख के और कहेंगे कि जी इस बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट का फैसला होना चाहिए। ठीक हो गया जी। और अपेरेंटली यहाँ पे हम ये टिल्ट टुवर्ड्स हम कह सकते हैं रोलर हो सकता है कि जिसमें कह सकते हैं कि आपकी बोर्ड की स्ट्रेटजी भी जो लग रही थी बिफोर बीइंग अप्रोच्ड बाय कोएल कि यू वांटेड टू go for vertical integration and that's the reason you started with discussions with roller। और आपका पोर्टफोलियो मॉडल भी आपको सजेस्ट कर रहा है रोलर, तो मे बी दिस इज कंपैरेटिवली जो है आपकी हायर प्रायोरिटी है स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव से, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। अब आइए पार्ट सी 4 मार्क्स के लिए। आई थिंक अगर आप इन दोनों मॉडल्स की बात कर लें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन के पर्सपेक्टिव्स की बात कर लें, तो दिस इज गुड इनफ, यू कैन सेफली सिक्योर दीज मार्क्स। अब आ गया पार्ट सी, ये भी 4 मार्क्स का है। यहाँ तक आप नोटिंग भी कर लें और अपनी जो नोटिंग्स करनी है वो करें।
यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर हम पार्ट सी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ईजी पार्ट। अब आइए पार्ट सी पे। पार्ट सी क्या कह रहा है, फिर हम उसका रेलेवेंट क्वेश्चन का एरिया दोबारा रीड करेंगे। एक्सप्लेन विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड द लाइकली इशू प्राइस। अब ये तो हमें पता है कि जो अमाउंट आपने रेस करनी है वो 500 है मिलियन, लेकिन प्रॉब्ली व्हेन इट सेज द अमाउंट तो इससे मुराद उसकी वो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है कि नॉमिनल वैल्यू की कितनी डेट हो कि जिसके थ्रू आप ये फंड करेंगे 500 मिलियन की, क्योंकि ऊपर हमें बताया गया है, टेबल से नीचे आए, OL would like to fund the acquisition by issuing some additional irredeemable debt finance. The existing debt of OL carries a coupon of 6% per annum and is trading at 75%. जो existing debt है उसमें अगर कहें for a face value equal to 100 तो उसकी जो मार्केट वैल्यू D है वो इस वक्त है 75 और उसका जो कूपन इंटरेस्ट है वो होगा 6% इंटू 100 इज 6, राइट, विच इज़ I। तो अगर हम उसकी मार्केट रेट निकालें KD वुड बी I डिवाइड बाई D इज 6 डिवाइड बाई 75 बिकॉज इट्स एन इररिडीमेबल डेट फाइनेंस। इररिडीमेबल का फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 75 करें तो प्री टैक्स रेट आ गया 8%। दिस इज इन्वेस्टर्स रेट एग्जिस्टिंग डेट का। अच्छा जी, तो न्यू डेट के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यू डेट फाइनेंस विल हैव अ कूपन रेट ऑफ 7% पर एनम। द डेट इज सिक्योर्ड इन अ सिमिलर वे टू द एग्जिस्टिंग डेट सच दैट द इन्वेस्टर्स विल एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न, यानी KD वही होगी जो न्यू डेट है उस फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ 100 तो आप कहें कूपन इंटरेस्ट यानी I वुड बी 7% इंटू 100 इज 7। KD जो उसकी होगी वो वही 8% होगी, तो जो मार्केट वैल्यू D होगी वो I डिवाइड बाई KD वुड बी 7 डिवाइड बाई 8% वुड बी 7 डिवाइड बाई 87 पॉइंट इंटू 100 कहें तो 87.5% हो गई, राइट। तो यूं कहिए कि अब आपको फॉर 500 मिलियन आपको क्या डेट इशू करनी पड़ेगी, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होगी 87.5 इंटू 100, तो 87.5 के हिसाब से तो आप उसकी जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए तो 500 मिलियन डिवाइड बाई 87.5 इंटू 100, so this turns out to be 571.4 मिलियन। तो आप इफेक्टिवली 571.4 मिलियन की न्यू डेट फेस वैल्यू ऑफ द न्यू डेट होगी जो कि आप इशू करेंगे और जिसकी मार्केट वैल्यू करस्पॉन्डिंग 87.5 के हिसाब से होगी 500 मिलियन, कूपन होगा 7% और अब इन्वेस्टर्स को लेंडर्स को वही 8% का रिटर्न मिलेगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अमाउंट ऑफ न्यू डेट that should be issued and the likely issue price. The issue price would be at 87.5. You will be issuing a total debt of 571.4. 7% का कूपन है तो ऑटोमेटिकली आपको 8% का मार्केट रेट बन जाएगा। तो दिस इज कंपैरेटिवली मच सिंपलर एंड ईजियर पार्ट। वैसे भी ये क्वेश्चन जनरली भी बहुत मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, सारा डेटा गिवन था एंड मोर अबाउट you are using basic formulas and then analyzing it। तो अब हम यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 which is the last question।